Okay, so we are going to cover this NumPy today, and NumPy, as you said, it means numerical Python, and it is the first library that we need to learn. And many other libraries are also made through this. So agenda is that we have to understand what is NumPy. We have to create some arrays with NumPy, transforming the list using the built-in functions, random data generation. So many things will be covered. So all of these will be covered in the today's lab. I will discuss them one by one, and I hope that you will be understanding it. So NumPy is a Python library to create n-dimensional arrays, and broadcasting can be done using NumPy. So do you people have any idea about what is vectorization, what is broadcasting? Any idea? If not, not an issue. I will be discussing them, but if you have any idea in advance, I want to know from you people. Okay, that means no. So inbuilt, there are many capabilities: linear algebra, trigonometry, random number generation, statistical distributions. All of them are inbuilt available in NumPy. So I will be starting the discussion now. NumPy arrays. Now, three techniques are available to us for working with the arrays, and as you can see, transforming the list using the built-in functions and the random data generation. So if you people are have opened this link and you people can click on open in Colab, I will not go to Colab today. So I'm not making any changes in the script. I'm just explaining you what is being shown to you. And so you can go to Colab and you can run it parallelly, but this is how we import the NumPy. Okay, import NumPy as NP, and then a equal to 123 print type a and print a. It means that, so can anyone tell me that what is this 123? It is a list. Actually, it is already printed, so I'm not going to ask you, but this is list, right? Putting the things inside square bracket, it means it is a list. If it was a round bracket, what would it be? If it was not a square bracket but a round bracket, what will it be? What will be the type? Anyone? We covered it in the last lab. Array. Array. Okay. Arrays की तो मतलब बात राउंड हो रही है ब्रैकेट में तो एरे ही लिखते थे ना। in Python. If I am, instead of putting these square brackets, if I put normal round brackets, तो type of a क्या निकल के आएगा? Sir, tuple. Yes, it will be tuple. Tuple, anything you say. So it will be a tuple, and we cannot make any changes in tuple. If you remember, it is not mutable, right? It is immutable and it cannot be changed. It will be 1 2 3, and if it is a curly bracket here instead of this square bracket, what will it be? If it is a curly bracket, anyone? Set. Set. So why I'm asking these questions, because in the last lab we discussed this data structures in Python, and in this data structures code, I have discussed these four types of data structures last time. So list is having the square brackets, and after that we looked into dictionaries. It has the curly bracket, but it has a key value pair, and if it is not a key value pair and it is just the curly bracket, it will be set, and if it is a round bracket, it is a tuple. So these were my questions, and this was the basic thing that I was expecting from you people. So okay, you people know now that this is 1 2 3 in square bracket. Type of a is list, and it is how, I mean, this is how it is printed. Okay, now if I write np.array a, what does this mean? It means that I am converting my list into numpy array. Initially वो एक list थी, right? It was a list, but now also it looks like this one. It looks like in this square bracket only, but the commas are gone, right? In list there are commas in between the values, but in a numpy array there is no comma, but only 1 2 3. All the values are there. So this is type conversion. I hope that everyone remembers simple type conversion
हम सी प्रोग्रामिंग में भी पहले कर चुके हैं, C++ में आपने करा होगा. देयर इज दिस टाइप कन्वर्जन इन दैट. सो सिमिलरली यहाँ पे भी वही हो रहा है. मतलब आपने क्या करा है, ये तो चलो टाइप ऑफ एरे ए प्रिंट करवाने का तरीका है, बट यू आर डूइंग दिस np डॉट एरे ए. तो a was a list, it is being converted into numpy array by using this command np dot array a, and in the end we are printing the array a, which is a numpy array now. So the difference between the printing is there. तो ये चीजें important हैं because in the end you will have to work with different types of data sets and you will need to get the work done. Now this is list of list, LOL. Shortcut में लिखा हुआ है, it is list of list. So there are multiple lists within this single list. 111 is one list, 222 is another list, 333 is the third list, and all of them have been combined into list of list. And if you print that, it will become like this: 111, 222, 333 with the commas. And if you convert them into array, so same thing is there, but now in 2D form. This was also 2D, but this time it is an array which is being printed, and the order is in a way that it looks more appealing that it is a 2D matrix. It is an array but in the 2D form. Now np dot a range. What does this a range does? It means that you have to start, stop, and step. So this is the starting point 0, stopping point is 50, and the step size is 5. So it is printing 0, 5, 10, 15 up to 45 without including this number. ठीक है, इसमें जो स्टॉप वाला नंबर लिखेंगे हम उसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा. 50 यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ. It is starting from 0 but it is going till 45 only. Now if I want a array filled with zeros, can anyone tell me application of this? अगर मैंने एक array print किया जिसमें 0 0 0 0 5 बार है, तो what is the actual meaning of this? मैं इसको क्यों ऐसे रखना चाहता हूँ जबकि 0 का तो कोई फायदा भी नहीं है. Sir, for initialization. For initialization and using it later on for another purpose, right? For filling it later on. अपेंड कर देंगे बाद में. अपेंड भी कर सकते हैं और इनको हम वैल्यूज को कहीं सेव भी कर सकते हैं. लेट्स से कि मुझे 5 जनों का रिजल्ट जनरेट करना था. आई हैव मार्क्स ऑफ मे बी 3 सब्जेक्ट्स ऑफ एवरीवन, बट आई वांट टू सेव द टोटल ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ ए पर्सन. ठीक है, मुझे टोटल करके परसेंटेज निकालनी है उस बंदे की. इन दैट केस आई कैन मेक np डॉट जीरोस करके मैं एक 5 एलिमेंट्स का 0 0 0 करके बना दूंगा, एंड एवरी टाइम आई कैन रिप्लेस दिस 0 विद द सम ऑफ दैट मार्क्स, राइट? तो मतलब इसका ये एप्लीकेशन हो जाता है. मतलब 0 0 फिल करके ऐसे नहीं है दैट इट इज यूजलेस. इट इज यूजेबल लाइक दिस. इट कैन बी अपडेटेड इनटू some other form. Similarly, np dot zeros 3, 4. Now it means that I need 3 rows, 4 columns, all filled with zeros. ठीक है, तो यहाँ पे main thing to notice is it is a array, numpy array है ये, and it is being printed like this. यहाँ पे हमने देखा था that array prints like this, right? It has all the rows coming one by one in the printed form. Similarly, in 3, 4, this is how it is being printed. np dot ones करोगे सब कुछ सेम है, बस 0 की बजाय 1 हो जाएगा. Similarly, ones 3, 3, तो यहाँ पे आपको 3, 3 दिख जाएगा. Now what is this linspace? Linspace का मतलब है returns evenly spaced 4 numbers from 0 to 20 including 20. ठीक है, अब यहाँ पे 4 का मतलब है कि मुझे 4 नंबर प्रिंट कराने हैं which are equidistant from each other. ठीक है, and if you see all these 4 numbers, they are actually equidistant from each other with a difference of 6.66. ठीक है, मतलब 4 नंबर का मतलब ये नहीं है कि आपने 0, 5, 10 और 15 4 प्रिंट करा दिए, बट नाउ 20 को भी रखना है रेस में. तो हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको इक्विडिस्टेंट 4 पॉइंट्स में रख रहे हैं. आई होप ये याद रहेगा. Similarly, if you do this 0, 4, 5, so you have to print the values from 0 to 4 including 4. इसमें 4 को छोड़ना नहीं है, एंड 5 नंबर है तो 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है, इक्विडिस्टेंट है, सब में डिफरेंस 1 का आ रहा है. 1 - 0, 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, हर बार 1 का डिफरेंस है. इक्विडिस्टेंट. np dot i, it means identity matrix. ठीक है, इसमें nothing to explain, all the diagonal elements are 1 and the size is 4, 4.
Now random distributions. Now we want to look into some random numbers. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं यूज करूंगा np.random.rand, अब देखो बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, बट ये सब तभी चलेंगे अगर आप टॉप पे import numpy करोगे। अगर आपने ये नहीं किया, अब मैं बहुत बार नीचे np.np. यूज कर रहा हूँ, वो इसलिए यूज कर पा रहा हूँ बिकॉज आई हैव imported this numpy as np. नाउ np इज बीइंग यूज्ड एवरी टाइम। नहीं तो अगर आपने ये ऊपर वाली सिर्फ इतना हिस्सा भी नहीं लिखा, अगर आपने अगर एज np नहीं लिखा, देन यू हैव टू राइट एवरी टाइम numpy.array a, numpy.zeros, numpy.ones, तो मतलब हर बार पूरा लिखना पड़ेगा। तो शॉर्टकट के लिए हमने उसको एज np लिख दिया है। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, आई विल जूम इन थोड़ा सा और बेटर दिखने के लिए। रैंडम डॉट रैंड, ठीक है, अब रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम द रैंडम पैकेज ऑफ दिस numpy। डॉट रैंड फंक्शन क्या करता है, एक नंबर दे के देता है हमें बिटवीन 0 and 1, ठीक है, और पॉइंटों में होगा विदाउट इंक्लूडिंग 1, 1 से कम होगा, ठीक है, तो रैंडम नंबर आ जाएगा। Similarly, if you are doing it for a 2D matrix, again you are getting the 5 rows and 6 columns. So these are very basic things. I just wanted to show you people that this is how you can generate numbers. अब इसमें मैं ये सब क्यों करवा रहा हूँ, इसका फायदा ये होने वाला है that you can now later on work on maybe dummy data sets। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक बहुत बड़ा डाटा सेट बनाओ जिसमें 5 रोज हैं, ठीक है, उसमें ऐसी करके रेंज होना चाहिए, मतलब इस रेंज में आने चाहिए नंबर, और इतने कॉलम होने चाहिए, इतने रोज होने चाहिए, तो आप वो सारा रैंडमली जनरेट करवा के एक खुद का डाटा सेट बना सकते हो, उसको सेव कर सकते हो, एंड देन यू कैन इवेंचुअली इवन डू सम मशीन लर्निंग ऑन दैट लेटर ऑन। सो np.random.rand n 2,3, इसमें सिमिलरली वही सब है, 2,3 है, माइनस में भी इसमें नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो 2,3 का मतलब यही है कि आप रैंडमली नंबर जनरेट कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग द वर्क डन। रैन इंटीजर मींस रैंडम इंटीजर्स 0,10, 3, ठीक है, रैंडमली 3 नंबर जनरेट कर रहा है 0 और 10 में। आफ्टर दैट रैंड इंट 0,50। अब इसमें मैक्सिमम केसेस में क्या हो रहा है कि जो सेकंड नंबर होता है वो इंक्लूड नहीं होता, उसको बिना इंक्लूड करे उससे एक नंबर कम तक जाना होता है। तो 4,5 आप मतलब सिर्फ ऐसे 3 लिखोगे तो यू विल गेट द 3 नंबर्स, बट इफ यू राइट 4,5 यू विल इवन गेट दिस 4,5 मैट्रिक्स ऑफ रैंडम इंटीजर्स। तो यू कैन जनरेट वैल्यूज लाइक दिस। नाउ देयर इज दिस फंक्शन कॉल्ड सीड वैल्यू 42, ठीक है, तो सीड वैल्यू 42 का मतलब ये है that I want to generate some values, but the seed value of seed value is one of a function which is generally used to fix some randomization। मतलब रैंडम नंबर बिल्कुल ही रैंडम ना हो, इसलिए सीड लिखते हैं हम साथ में। अगर आप ये दोनों स्टेटमेंट रन करोगे यू विल गेट एग्जैक्टली दीज 5 वैल्यूज और 4 वैल्यूज, ठीक है, बट अगर आप सिर्फ ये वाले स्टेटमेंट को रन करोगे देन दीज 4 वैल्यूज विल बी डिफरेंट फॉर यू, बट ये वाले दोनों के लिए आंसर आपका एग्जैक्टली यही आएगा, बिकॉज एक सीड का मतलब ही ये है दैट सीड वैल्यू 42 इज समथिंग दैट समथिंग इज फिक्स्ड एट द बैक एंड। आप 42 42 प्राइम नंबर के हिसाब से कुछ लॉग करवा रहे हो, कुछ नहीं पता बैक एंड पे क्या हो रहा है, बट the basic reason behind seed value is that you want to get the same result again and again, that's why you are fixing the seed value, ठीक है। तो अगर आप इन दो स्टेटमेंट को रन करोगे your 4 values will be same like mine, but if you are just running this np.random.rand function it will get you random values and these 4 values will not be matched। सिमिलरली अब देखो मैंने यहाँ पे दो बार किया था, दोनों बार ये आंसर अलग अलग आया है, ठीक है। नाउ np.arange 25, ठीक है, एंड a डॉट रीशेप। अब मैंने क्या किया, ए रेंज क्या करता था, कैन एनीवन टेल? लाइन नंबर 23 में np डॉट ए रेंज 0,25 वो रखा है, क्या होता है ये ए रेंज, कैन एनीवन टेल? जीरो से 25 तक शायद नंबर प्रिंट करेगा, 0 1 2 3 4। अप टू 25? शायद एक कम प्रिंट करता है जितना
यस, एक एक कम तक जाता है, कम 24 तक 20 जाएगा, ठीक है। यस सर। यस, तो 0 से लेके 24 तक जाएगा, एंड उसी को मैंने क्या करा अगली स्टेटमेंट में, क्योंकि मैंने ए में नंबर डाले थे तो उसको मैं रीशेप कर सकता हूँ, रीशेप करके 5,5 किया, तो इट इज लुकिंग लाइक दिस। 5 रो है, 5 कॉलम है, रीशेप करके उसी चीज को 0 से 24 को ऐसे करके उसने प्रेजेंट कर दिया, राइट। अच्छा ये बताओ, इफ आई रन दिस ए डॉट रीशेप 5,3, अब इसको मैंने कमेंट करा हुआ है यहाँ पे, बट अगर मैं कमेंट ना करूँ और इसको मैं रन करूँ, या फिर आप अपने एंड पे रन करके देखो, तो एरर आएगा। वाई? बिकॉज एलिमेंट्स 25 हैं, एंड रीशेप हैज टू बी डन इन द फॉर्म के 25 एलिमेंट्स को ही प्रिंट करवाने की कमांड दी जाए। 5,3 पे एरर आएगा, बट 25,1 पे नहीं आएगा, 1,25 पे नहीं आएगा, ठीक है, 5,5 पे नहीं आएगा। अगर कोई और फॉर्मेट आप कर सकते हो, वैसे तो इसमें और कोई क्या ही होगा 25 के लिए। सो दीज आर द ओनली थ्री थिंग्स, 1,25, 25,1 एंड 5,5, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ भी करोगे उसमें एरर आ जाएगा, क्योंकि वो 25 ही नहीं बन पाएगा। आफ्टर दैट, नाउ इफ यू वांट टू जनरेट दिस रैंडम इंटीजर 0,51,8, इसका मतलब है आप 50 को इंक्लूड करना चाह रहे हो, ठीक है। 0,51 है तो 51 को नहीं करेंगे, 50 तक 8 नंबर रैंडमली जनरेट करने हैं, तो वो रैंडम एरे में आ गया। एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आउट ऑफ द फुल एरे यू कैन यूज दिस फंक्शन डॉट मैक्स, मिनिमम के लिए डॉट मिन, ठीक है। आर्गमैक्स, आर्गमैक्स क्या करता है एनीवन? व्हाट इज आर्गमैक्स, एनी आइडिया? सर इंडेक्स देता है जो एरे है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। यस, आर्गमैक्स का मतलब है दैट इट विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द मैक्सिमम नंबर, ठीक है। तो आपका 43 हाईएस्ट नंबर था, तो 43 का इंडेक्स है 0। एरे में इन पाइथन इंडेक्सिंग स्टार्ट्स विद 0, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 8 है तो 0 to 7 जाएगा। अगर 43 मेरा आखिरी पे होता तो आंसर मेरा 7 आता, बट वो फर्स्ट लोकेशन पे है तो इसलिए उसने 0 रिटर्न किया इस केस में। Again, argmin means that it will give me the index of minimum number, it is 1, और 1 किस लोकेशन पे है? 0 1 2 3, तो आंसर इसका 3 आना चाहिए argmin का, ठीक है। Now what is the data type of this random array? It is int 64, ठीक है। by default ये int 64 में कर रहा है। what is the shape? 25 empty। why? because किसका शेप दे रहा है ये? a का दे रहा है, तो a is this, right? ए वाला हमारा ये था। एंड अब यहाँ पे मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो शेप आई है वो 25 कॉमा एम्प्टी है, पर हमने तो उसको रीशेप किया था ए डॉट रीशेप लिख के, राइट। तो वो 5,5 क्यों नहीं दे रहा, वो 25 कॉमा एम्प्टी क्यों दे रहा है शेप? एनी आइडिया? सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? यस, आई एम सेइंग आई एम प्रिंटिंग ए डॉट शेप, ठीक है। ए डॉट शेप लिख के शिफ्ट एंटर मारोगे या आप उसको रन करोगे कमांड को, तो आउटपुट आ रहा है यहाँ पे 25 कॉमा एम्प्टी। बट यहाँ पे हमने ए डॉट रीशेप 5,5 किया था, तो ये 5,5 बन तो गया, तो यहाँ पे 5,5 क्यों नहीं आउटपुट आया? 25 एम्प्टी क्यों आया? उसने शायद ओरिजिनल एरे देखा होगा, जो भी 0,25 करके हमने बनाया शायद। ओके, एनीवन एल्स? कनव? कनव, एनी इनपुट हियर? अतुल? सर मे बी हमने उसको दोबारा ए में स्टोर नहीं करा, जो हमने इस पे मतलब फंक्शन अप्लाई करा है ए डॉट रीशेप, तो वो दोबारा एरे की फॉर्म में दे रहा हाँ, यस, करेक्ट, है। 100% आपका ठीक है।
द रीजन इज बिकॉज हमने यहाँ पे a इक्वल टू a डॉट रीशेप नहीं करा। हमने a डॉट रीशेप 5,5 कैसा होगा वो तो शो कर लिया, बट वी हैव नॉट सेव्ड इट इनटू a। या तो आप यहाँ पे भी बिफोर दिस स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिखते a इक्वल टू देन दिस स्टेटमेंट, फिर तो वो a अपडेट भी होता, तो a तो अपडेट हुआ नहीं, इसलिए उसने पुराने वाला इनिशियल वाला उठा लिया जो आप पहले कह रहे थे। वन ऑफ द स्टूडेंट वाज सेइंग दैट वो ओरिजिनल वाला ले रहा है और वो सही ले रहा है बिकॉज उसको अपडेट नहीं हुआ। सिर्फ इतना करने पे आप इसी स्टेटमेंट के आगे a इक्वल टू लगा दोगे, देन द आंसर विल बी 5,5 इन दिस केस a डॉट शेप में। ठीक है, नाउ यहाँ पे करा है this a equal to a dot reshape 5,5। now in this case it is like this जैसे पहले आया था। तो अब आप a dot shape करोगे आफ्टर डूइंग दिस a equal to a dot reshape, तो वो आंसर 5,5 दे रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, you have to remember these things, you have to understand। I will suggest you to run this code on your end and just do some basic changes। थोड़ा चेंजेस करो उसमें, कुछ पंगे लेके देखो, यू विल अंडरस्टैंड। नहीं होगा तो डाउट लेकर आओ मेरे पास, वी विल डिस्कस, राइट। एंड नाउ a इक्वल टू a डॉट रीशेप 1,25। इसमें क्या हो रहा है, सिंगल रो 25 एलिमेंट्स, वो एक सिंगल रो में सबको लेके आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल रोज नहीं है, ये सिंगल रो है, ये ड्यू टू सम, ये इसके कारण है ऐसे, अदरवाइज आई थिंक उसमें कुछ इशू नहीं होना चाहिए। हाँ, इट इज डिपेंडिंग अपॉन स्पेस कितनी है आपके पास। तो अगर मैं स्पेस और कम कर दूंगा तो ये शायद जब मैंने रन किया था एंड सेव किया था इट वाज लाइक दिस। तो स्पेस के बेसिस पे उसने यहाँ पे 2 रोज दिखा रहा है, बट अगर मैं उसका फॉन्ट साइज छोटा कर दूंगा आई एम श्योर दैट इट विल बी इन ए सिंगल रो विजुअली ऑल्सो, बट कंसिडर दिस थिंग एज ए सिंगल रो इटसेल्फ। ओके, तो ये हो गया। नाउ कमिंग टू इंडेक्सिंग एंड सिलेक्शन। Now in this, we have to do 4 things. First of all, grabbing the single and a slice of elements, broadcasting the selections, indexing and selection in 2D, conditional selection. These are the 4 things that I want to discuss. Now, if you have this array of np.a range 0 to 15, it means वो 14 तक print करेगा, 0 से लेके 14 तक। And if you are printing the array 4, इसका मतलब है कि वो 0, 1, 2, 3, 4, अब ये by chance लोकेशंस वाले नंबर ही यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो वो आउटपुट भी 4 दे रहा है। नाउ इफ आई राइट एरे 4:9, ठीक है, 4:9 लिखा है मैंने, तो इसका आउटपुट बताओ। एरे 4:9, इसका आउटपुट बताओ आउट ऑफ दिस। बताओ जी, what will be the output in this case? फोर्थ एलिमेंट से स्टार्ट होगा। प्रिंट नंबर बोलो ना, क्या क्या प्रिंट होगा। विल इट बी 4, 5, 4 6, 5 7, 6 8 7 8 या 4, 5, 6, 7 ओनली? 5 नंबर प्रिंट होंगे ना, 4 5 5 होंगे, 6 6। होंगे, 4 होंगे, आपके हिसाब से 8 तक प्रिंट होगा, 4 to 8, राइट? हाँ जी सर। ओके, एनीवन एल्स? ये सब 4 to 8 प्रिंट होगा। अच्छा, अब 4 to 8 होगा, वाई 9 क्यों नहीं? सर वो एक्सक्लूसिव होता है, इंक्लूड नहीं करता है। यस, एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं करना। तो 4 to 9 का मतलब है कि आप 4th लोकेशन से शुरू करो, 4, 5, 6, 7, 8, 9th लोकेशन को छोड़ दो। ठीक है, सिमिलरली आप 0 to 4 करोगे तो 0, 1, 2, 3, 4 नहीं आएगा। सिमिलरली अगर आप :4 लिखोगे, इसका मतलब आपने इनिशियल नंबर तो दिया नहीं। अब जैसे यहाँ पे 0 दिया था, यहाँ पे 4 दिया था, तो जब हम कुछ नहीं देते तो वो बाय डिफॉल्ट 0 होता है। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग से लेके 4 लिखा है तो इसका मतलब 3 तक जाना है, तो 0, 1, 2, 3। अगर 9 कॉलन खाली है तो सेकंड हाफ एम्प्टी है, इट मींस 9 से लेके एंड तक जाना है। ठीक है, तो ये 9 से लेके एंड तक उसने प्रिंट करा दिया। आफ्टर दैट ब्रॉडकास्टिंग। अब ब्रॉडकास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रॉडकास्टिंग का देख लेते हैं कैसे होता है। एनी आइडिया ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है? यहाँ पे आपके सामने कुछ दिख रहा है आपको। इफ यू वांट टू कमेंट एनीथिंग रिगार्डिंग दिस यू कैन।
नाइन्थ एलिमेंट के बाद सारे नंबर्स को 100 कर दिया, मतलब नाइन्थ से स्टार्टिंग एंड में कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो सबको तो वो तो 100 एक कर दिया। पर्टिकुलर केस में है ना। इफ यू वांट टू एक्सप्लेन, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो अब इसको। सर हमें तो कंप्यूटर नेटवर्क वाला ब्रॉडकास्टिंग पता ही है, ये नहीं नहीं नहीं, पता। वो वाला नहीं है ये। सो इन दिस होता क्या है कि मतलब ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है दैट यू आर काइंड ऑफ, ऐसे होता था ना मैट्रिक्स में कि अगर आप 2 मल्टीप्लाई समथिंग मैट्रिक्स कर रहे थे, वो मैट्रिक्स के पूरे सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाते थे। इमेजिन करो 1 2 3 4 का 2 by 2 का एक मैट्रिक्स है, आप 2 इंटू दैट मैट्रिक्स करोगे तो वो 1 2 3 4 विल बिकम 2 6 8 एंड 9, 2 6 2 4 6 8, ये बन जाएगा इंटू 2 करने पे। वही चीज अब यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, बट यू आर एक्चुअली इक्वेटिंग ऑल द एरे एलिमेंट्स इक्वल टू 100 इन केस वो 9 से लेके एंड तक जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए 9th एलिमेंट से लेके 14th एलिमेंट तक एंड तक उसने सबको 100 कर दिया। नाउ अगर आप np डॉट अरेंज करके दोबारा से इसको लेके आओगे, एंड इफ यू आर डूइंग द स्लाइसिंग, अब इसका एक स्लाइसिंग का भी कंसेप्ट आ जाता है। स्लाइस्ड एरे है, स्लाइसिंग एरे, चलो ये तो कुछ भी नाम लिख सकते हो, बट एरे 1 to 6 इसका मतलब है कि 1 से शुरू करो और 6 से एक पहले तक जाओ, 5 तक, 1 2 3 4 5 डाल दिया स्लाइसिंग एरे में। अब ओरिजिनल एरे ये है, पर स्लाइसिंग एरे हमारा था 1 2 3 4 5। नाउ आई एम राइटिंग दिस स्लाइसिंग एरे कॉलन इक्वल टू 100 और स्लाइसिंग एरे प्रिंट करवा रहा हूँ। बताओ क्या इफेक्ट होगा, क्या आउटपुट आएगा? सारे एलिमेंट्स 100 कर दिया स्लाइसिंग एरे पे। स्लाइसिंग एरे के सारे एलिमेंट्स 100 कर देगा। करेक्ट। ठीक है, तो मतलब ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, इसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। ठीक है, बट इस केस में हमारे ओरिजिनल एरे पे भी इफेक्ट आ गया। ठीक है जी, जब आपने किसी एरे का स्लाइस्ड एरे निकाला और आपने उसके ऊपर कुछ इफेक्ट किया, तो वो आपके ओरिजिनल एरे को भी इफेक्ट कर गया बैकएंड पे। स्लाइसिंग में ये दिक्कत है। बट इफ यू वांट टू सेव योर ओरिजिनल एरे, आप क्या करो, आप उसके एरे की एक कॉपी बना लो। ठीक है, उस कॉपी को फिर आप इक्वल टू 100 करोगे तो आपका एरे कॉपी तो दोबारा सारे 100 हो जाएंगे, पर ओरिजिनल एरे आपका वही विद इन, उसमें 5 एलिमेंट ही 100 थे। तो मतलब कॉपी बना के काम करोगे तो स्लाइसिंग में ज़्यादा सेफ है। ठीक है, मतलब कॉपी बना लो तो फिर आपका ओरिजिनल एरे नहीं तंग होगा। तो दिस वाज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस। नाउ इंडेक्सिंग एंड सिलेक्शन इन 2D. So I'm spending so much of time on the basics because I want you people to do some coding in Python. और आने वाले टाइम में I want you people to be more relaxed in terms of at least Python आता हो, ताकि आप बाकी मशीन लर्निंग की कोडिंग कर पाओ। If you are not knowing these basics, it will become difficult for you to handle different data sets and forget that you will do some machine learning. But if you are comfortable in these things, that's why I have shared these things with you. That's why I'm giving you all these codes. यहाँ पे कहाँ गया, एक सेकेंड, ये व्यू कोड पे जाना पड़ेगा। अंडर द व्यू कोड यू कैन गेट ऑल दीज कोड्स, दे आर अवेलेबल। ठीक है, आपको मैं ये वाला दे भी देता हूँ चैट बॉक्स में। सेव दिस लिंक विद यू, go through these codes, जितना आप बेसिक्स करोगे उतना अच्छा है। एंड इवन आई हैव शेयर्ड द बेसिक्स ऑफ पाइथन वीडियो विद यू ऑन द वेबसाइट, सो यू कैन गो थ्रू दैट। बहुत कुछ है सीखने के लिए। ठीक है, तो उससे आपका फायदा ही होगा। एक सेकेंड, कहाँ थे हम? पांडास वाले में थे? नहीं, नमपाई में थे। एंड वी वर डिस्कसिंग दिस स्लाइसिंग। ठीक है, ये हो गया। एंड आफ्टर दिस इंडेक्सिंग एंड सिलेक्शन इन 2D, नाउ यू हैव ए एरे। ठीक है, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके एक नंबर एरे है, जिसको आप प्रिंट करवाओगे तो ऐसे लिखेगा। इफ यू वांट टू सी द शेप यू कैन यूज द डॉट शेप फंक्शन, एंड इफ यू प्रिंट द 0th एलिमेंट, उस केस में ये 1 2 3 दे रहा है। ठीक है, वाई, एनी आइडिया? सर फर्स्ट रो को वो बस इंडेक्स 0 पे वो कंप्लीट पड़ा है ना 1 2 3 इसलिए।
Okay, anyone else was speaking? एक जना और था, आवाज आई थी. हाँ जी, anyone else want to explain कि ये 1 2 3 क्यों आया? सिर्फ 1 क्यों नहीं आया? सर 2D एरे ना एक तरीके से, तो 0, हमें 2D में डिफाइन करना पड़ेगा. अगर हम 0,0 करें तो 1 आएगा. यस, अगर आप 0,0 करोगे तब 1 आएगा. अगर आप सिर्फ 0 लिख रहे हो, इसका मतलब है यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन सिंगल रो, यू आर नॉट गिविंग द कॉलम एलिमेंट. तो कॉलम एलिमेंट दिया नहीं तो फिर वो सारे कॉलम ही पकड़ लेगा. तो वो 0 रो के सारे कॉलम उसने प्रिंट करवा दिए 1 2 3. ठीक है, तो इसको बहुत बेसिक से समझो, आसान है. इट विल बी इजी फॉर यू. इफ यू वांट टू प्रिंट दिस सेकंड रो, इट मींस वो थर्ड रो मतलब हो जाएगा टेक्निकली 0 1 2. तो 7 8 9 को प्रिंट कर देगा विद array 2d2. आफ्टर दैट प्रिंट array 1 2 1 2. अगर आप ऐसे करके लिखोगे, नोटिस दैट एवरी टाइम 6 इज बीइंग प्रिंटेड. आप चाहे सिंगल ब्रैकेट में लिख दो, चाहे आप दो ब्रैकेट्स में लिख दो. ठीक है, तो 1,2 लिखने के दो तरीके हैं. नाउ इफ यू आर राइटिंग दिस 0,2, 0 का 0,2 हो गया 3. ठीक है, तो 0,2 इज 3. इफ यू आर डूइंग दिस array 2d colon 2, तो आपने रो कोई नहीं बताया, तो कॉलम बताया, मतलब 0,2 है यहाँ पे. इसने क्या किया है, दो रोज को प्रिंट करवा दिया, पहले दो रोज को प्रिंट करवा दिया. ठीक है, तो कॉलन 2 का मतलब है दैट यू आर फोकसिंग ऑन टू रोज, 0 एंड 1. ठीक है, मतलब आप उसमें से सिर्फ 0 कर रहे थे, सिर्फ 2 कर रहे थे. अब यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि मुझे 0 और 1 चाहिए, तो 0 में ये आ गया, 1 में ये आ गया. ठीक हो गया. सिमिलरली इफ यू आर डूइंग दिस कॉलन 2 कॉमा 1 कॉलन, तो कॉलन 2 का मतलब है आपको फर्स्ट 0 एंड 1 रो दो चाहिए. 1 कॉलन का मतलब है कि आपको 1 एंड 2 दो कॉलम चाहिए. ठीक है, तो सिर्फ इतना हिस्सा आएगा. कहाँ गया ये, 2 3 एंड 5 6. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करने वाली चीजें हैं, समझ आ जाएंगे अगर आप एक बार दोबारा देख लोगे इसको. नाउ कंडीशनल सिलेक्शन np डॉट ए रेंज 1 to 11. ठीक है, तो 10 तक प्रिंट करवा देगा वो, क्योंकि 11 को नहीं रखना. नाउ एरे ग्रेटर देन 5, तो एरे ग्रेटर देन 5 का मतलब है आंसर विल बी इन बुलियन. तो ट्रू फॉल्स में आंसर आएगा. जहां जहां पे 5 से ज्यादा नंबर हुआ तो वो ट्रू प्रिंट कर देगा, अगर नहीं है तो वो वहां पे फॉल्स कर देगा. तो 1 से लेके 5 तक तो वो 5 से बड़ा नहीं है, 6 से ही है. तो ओनली 5 ट्रू वैल्यूज आर देयर, फर्स्ट 5 वैल्यूज आर फॉल्स. ठीक है, नाउ यू कैन सेव दैट इनटू ए बूलियन एरे आल्सो. तो आप इस चीज को बूलियन एरे में सेव कर दो, तो बूल एरे आप प्रिंट जब आप करवाओगे तो वो फर्स्ट 5 वैल्यूज आर फॉल्स, सेकंड 5 वैल्यूज आर ट्रू. आप उसको अगर सिर्फ बूलियन एरे प्रिंट करवाओगे तो ट्रू फॉल्स आएगा. बट अगर आप एरे के अंदर बूलियन एरे लिखोगे तो आपके पास वो वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि वो फिर इसको ओरिजिनल एरे के साथ ओवरलैप करके जहां जहां पे ट्रू के साथ वो मल्टीप्लाई कर पाएगा, द आंसर विल बी प्रिंटेड. ओके, गिव मी 1 second. Yes, so any kind of query till now, we have done lot of things. देखो, अगर मैंने ये सब पहले से ना लिखा होता तो आपको मैं बहुत कम चीजें करवा पाता. इफ आई विल बी टाइपिंग एवरीथिंग एंड देन एक्सप्लेनिंग, तो उसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा. सो आई एम यूजिंग दीज थिंग्स जिसमें यू आर गेटिंग एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एंड it might be lot for you, but according to me, because this is basic Python, you are expected to do it, do them at a fast pace. इसमें कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू मी. अगर कुछ एरर है, मतलब एरर आ रहा है किसी का, या किसी को कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क मी राइट नाउ. दिस इज द राइट टाइम टू आस्क.
एंड द सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, तो आप बाद में भी रिवाइज कर पाओगे। अगर आपको एक बार में मेरी बात समझ नहीं भी आई तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, बट वीडियो में तो आप अनलिमिटेड टाइम रन कर सकते हो। हाँ जी, एनीवन, एनी आइडिया, एनी क्वेरी? ऊपर कोई ऑपरेशन समझ ना आया हो, यू कैन आस्क। If no query, we will move ahead. So numpy operations पे आते हैं. There are multiple operations. Now we will be going through plus, minus, multiply, divide, ऐसा कुछ देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे होता है. So array equal to np dot arrange, ये तो चलो सबको पता है, अब 0 to 9 तक आ जाएगा. +5 if I do, it will be broadcasted. It will be done for every element. Okay, array +5, it is a broadcasted thing, and it will be done on each element. Array -2, it is doing the -2 on each element. Notice that the outputs are based on the original array. Why? Because हमने यहाँ पे array equal to array +5 नहीं किया. Original array is not being affected. Previous original array के ऊपर ही जो हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है. Similarly array plus array, आप सिर्फ प्रिंट करवा रहे हो कि आपको array के एलिमेंट्स को खुद के साथ ऐड करना है. 0 + 0, 1 + 1, सारा कुछ आ गया अपने पास. एरे इनटू एरे, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन हो गया. एरे माइनस एरे, सिमिलरली माइनस करके 0 आ गया. गुड, बट ओरिजिनल एरे इज स्टिल अनअफेक्टेड. नाउ व्हाई एरे डिवाइड बाय एरे is giving me this kind of error? Yeah. 0 divided by 0 is indeterminate form. हाँ, तो 0/0 को वो बोल देगा नैन, बाकी सबका 1 आ रहा है. अब ये नैन क्या होता है, एनीवन? एन क्यों दिया उसने, बताओ जी. नॉट ए नंबर, बहुत सिंपल है. नहीं, इसको बोलते हैं नॉट ए नंबर, ठीक है. NaN इज नॉट ए नंबर, इसकी फुल फॉर्म है. तो जस्ट रिमेंबर दिस, नॉट ए नंबर होता है ये NaN. आफ्टर दैट इफ आई डू 1 डिवाइड बाय एरे, तो 1/0 इन्फिनिटी होगा, ठीक है. और बाकी सबका ऐसे करके आउटपुट आ गया. तो आप डिवाइड भी कर सकते हो एरे को, एरे बाय एरे भी कर सकते हो. तो ये सब आप रन करके देख लेना. नाउ इफ यू डू np डॉट स्क्वायर रूट ऑफ एरे, पूरे एरे का ईच एलिमेंट का आपने स्क्वायर रूट किया. 0 का स्क्वायर रूट 0 है, 1 का 1 है, 2 का ये है, 3 का 1.732 है, 4 का स्क्वायर रूट इज 2. तो ऐसे करके 0 से लेकर 9 तक के सबके स्क्वायर रूट आ गए. अगर आपने साइन वैल्यू निकालनी है तो साइन ऑफ एरे निकाल लेना, हर वैल्यू का साइन आ जाएगा, सिमिलरली लॉग आ जाएगा. तो ये सब आप करके देख लेना. एरे डॉट सम, एरे डॉट मीन, मैक्स, वेरियंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, all of these are very basic things and I hope आपको इन सब चीजों का मतलब भी पता है. So I will not go into the details. So array 2D np.arange 0,25 reshape this. अब यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट लगी है. np.arange तक तो समझ आता था, ठीक है. np.reshape भी समझ आता था. तो अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे हमने डॉट लगा के 2 बार कर दिया काम. तो वो एक ही बार में 2 काम कर गया. पहले उसने 0 से लेकर 24 तक किया और उसको रीशेप करके फटाफट से हमारे लिए ये वाला एरे रेडी कर दिया, ठीक है. तो हम ऐसे करके डॉट करके अपेंड कर करके भी हम मल्टीपल चीजें करवा सकते हैं सिंगल स्टेटमेंट में. सिमिलरली रीशेप मतलब करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज ऑलरेडी 5,5. नाउ डॉट सम आप करोगे तो सारे एलिमेंट्स का सम आ गया, इजी है. नाउ व्हाट अबाउट दिस एक्सिस 0 एंड एक्सिस 1? एनीवन, एनी आइडिया? Axis 0 is row and axis 1 is column. एक्सिस 0 इज रो, ठीक है. तो रो वाइज हम सम करके देखते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट रो का सम 50 तो नहीं आ रहा, 10 जरूर आ रहा है. तो एक्सिस 1 इज रो, एक्सिस 0 इज कॉलम, ठीक है. तो आपने ठीक बोला था, बस उल्टा बोल दिया था, मतलब कंसेप्ट वही है. एक्सिस 0 इज एक्चुअली कॉलम्स, कॉलम वाइज उसने सम करा है 0, 5, 10, 15, 20, 1, 6, 11, 16, 21. तो ऐसे करके उसने सबको सम कर दिया. x इज इक्वल टू 1 इज रो वाइज, तो वो उसने रो वाइज उसको सबको सम कर दिया. तो मतलब इनका सबका सम प्रिंट हो रखा है रो वाइज इन x इज इक्वल टू 1, कॉलम वाइज इन x इज इक्वल टू 0. याद रखने वाली चीज है, याद रखना. नाउ वेक्टराइजेशन, लेट्स टेक 2 minutes ब्रेक, ठीक है. टिल नाउ यू कैन रिवाइज, you have the code with you, you can revise, you can run the code and
then after 2 minutes break, maybe 3-4 minutes break, at 6:50 I will start and we will go till 7:35 and we will end the session then. But right now I want to give you 2-3 minutes break and run the things on your end. अगर कोई डाउट है अब तक पूछ लो, बिकॉज बहुत कुछ कवर हुआ है ऑलरेडी. Take your break and let's continue at 6:50. Okay, so now vectorization. Vectorization is another concept just like broadcasting. तो इसमें क्या हो रहा है, we are reducing the usage of loops. I hope everyone knows how to use a for loop, while loop, do while loop. तो वो सब तो सबको पता ही है. Those are very basic things. But in this case, vectorization में होता क्या है? Let's see the difference between the time taken for execution for a dot product. Can anyone tell me what is a dot product of a matrix? हाँ जी, anyone? What is dot product of a matrix? एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होता है. हाँ, अगर आपके पास दो एरे हैं, यू आर मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट लोकेशन वाइज. 0 को 0 एलिमेंट के साथ, 1 वाले को 1 एलिमेंट के साथ, 2 वाले को 2 के साथ. सो दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए फंक्शन फॉर ए मैट्रिक्स. तो यहाँ पे हम दो तरीके से करेंगे. वन थिंग इज फॉर लूप. फॉर लूप से तो सबको पता ही है, आपको फॉर लूप सबको लिखना आता है, आई सपोज. बट आई विल ऑल्सो डिस्कस द वेक्टराइजेशन मेथड फॉर द सेम थिंग. ओके, नाउ a equal to np dot array. ये तो हमें सबको पता है कि this is now numpy array having 4 values. If you print it, it will be printed as it is. Same आप random number generate करके करोगे तो आपके पास 0 से लेके 1 में there are 5 elements in this case randomly generated. Now if you want to generate randomly 10 million values, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे there are 7 zeros. So a dot random dot rand, 10 million values are there in A and 10 million values are there in B. नाउ रैंडमली अगर आपने जनरेट कर लिया तो ऐसे करके रैंडम नंबर आ जाएंगे उसमें, है ना, पॉइंटों में. तो अब उनको आपस में मल्टीप्लाई भी करना है तो मैनुअली तो बहुत टाइम लग जाएगा. तो देर आर टू मेथड्स. वन थिंग इज दैट यू कैन डू इट विद फॉर लूप. फॉर लूप में क्या करोगे आप, इसमें फॉर लूप में, हाँ ठीक है, इट इज ए इजी मेथड. तो फॉर लूप में क्या कर रहे हैं हम, फॉर आई इन रेंज. अब किसी को अगर फॉर लूप नहीं आता पाइथन का, बहुत आसान है. जस्ट सी दैट वी आर गोइंग टू सेव आर आंसर इन सी वैल्यू. सो सी को मैंने 0 कर दिया इनिशियली, और ये टाइम की बात बाद में करते हैं. बट अगर सी को 0 के बाद आप डायरेक्टली फॉर लूप लगाते हो, इजी है. करना क्या है, आई इन रेंज दिस. नाउ रेंज के बाद whichever number you put, this number is not included, but from 0 till 1 number less to this number the loop starts. अगर यहाँ पे 10 होता तो वो 0 से लेके 9 तक जाता. अगर यहाँ 10 मिलियन के बजाय सिर्फ 10 होता तो 0 से 9 तक जाता. अब इस केस में 0 से लेके 99,99,999 तक जा रहा है. ठीक है, तो वो एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई करके अपने आंसर को अपडेट कर रहा है, सी में डाल रहा है. सेम थिंग कैन बी डन यूजिंग वेक्टराइजेशन मेथड. वेक्टराइजेशन मेथड में क्या कर रहे हो आप, नंपाई की हेल्प ले रहे हो. np डॉट dot डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो a कॉमा b का. अब a में हमारा था फर्स्ट 10 मिलियन नंबर्स, b में हमारे सेकंड 10 मिलियन नंबर है. आप np डॉट प्रोडक्ट ऑफ a कॉमा b कर दोगे, आपके पास ये सब हो जाएगा जो आप फॉर लूप में कर रहे थे, सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट में. ठीक है, तो numpy इज वेरी पावरफुल इन दैट सेंस. अब एक यहाँ पे मैंने टाइम डॉट टाइम करके 3-4 बार यहाँ पे यूज करा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है पहले देख लेते हैं ये होता क्या है. Now background on time dot time. It returns the time as a floating point number expressed in seconds since the epoch in UTC. अब जब कंप्यूटर बना था 1970 में, जब सब कुछ शुरू हुआ था, तो यूनिक्स जैसे, I hope you know that Windows is a this operating system. Similarly, Unix and Linux is also this operating system. So according to Unix, जब सबसे पहले बना था, Linux से भी पहले Unix बना था. Unix came in 1970, जैसे ये आपको दिख रहा है, but Linux came in 1991. Linus Torvalds ने 1991 में Linux लॉन्च किया था. तो Unix 20 साल तक चला था आराम से. ठीक है, तो इसमें जब आपका काउंटर शुरू हुआ तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 1970. तो उन्होंने क्या किया, हर सेकंड को 1 1 1 1 ऐसे बढ़ाते रहे.
ऑब्वियसली मिली सेकेंड्स को भी उन्होंने बीच में काउंट किया, पॉइंट्स में आंसर आता है। तो सिंस दिस टाइम ऑफ 1 जनवरी 1970 के रात के 12 बजे से लेके आज तक जितने भी सेकंड हुए हैं वो चीज रिटर्न करता है टाइम डॉट टाइम। ठीक है, तो अगर मैं टाइम डॉट टाइम अभी रन करूंगा, सपोज मेरा आंसर 1 आया, तो 2 सेकंड के बाद रन करूंगा तो मेरा आंसर 3 आएगा। तो वो काउंटर बढ़ रहा है हर 2 सेकंड में, मतलब हर सेकंड वो +1 +1 +1 हो जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे किया क्या है, मैंने टिक एंड टॉक आर द 2 वेरिएबल्स आई हैव टेकन। मैंने क्या किया कि बेस्ड ऑन दैट टाइमर जो चल रहा है पहले से, कुछ टाइम है उसको टिक में सेव किया, और जब मेरा काम हो जाएगा उसके बाद दोबारा से टाइम स्टैम्प को सेव किया, और टॉक माइनस टिक करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा ये वाला स्टेटमेंट कितनी देर में सॉल्व हो रहा है। तो मैंने उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके इंटू मतलब 1000 करके डिफरेंस को मिली सेकेंड्स में प्रिंट करवा दिया। तो वट एवर वेक्टराइज वर्जन विल बी, सिमिलरली मैंने उसको फॉर लूप में किया। तो जब मैंने प्रिंट करवाया दोनों का टाइम डिफरेंस, तो वेक्टराइज वर्जन ने मुझे आंसर दिया 13.63 मिली सेकेंड्स में फॉर मल्टीप्लाइंग दीज 10 मिलियन वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। लेकिन जो मेरा फॉर लूप है ये भाई साहब ने लगा दिया 6599 मिली सेकेंड्स। तो सी द डिफरेंस, 13 वर्सेस 6600, बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। दैट्स वाई वेक्टराइजेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग और मे बी हाई लेवल डेटा सेट्स। अगर बहुत सारे वैल्यूज हैं, लेट्स से बिलियंस ऑफ वैल्यूज हैं, है ना, इमेज के वीडियो में बहुत सारे वैल्यूज है, तो आपको उनके साथ कुछ अगर बैकएंड पे कोई भी प्रोसेसिंग करनी है, इट इज बेटर इफ यू डू नॉट यूज दिस फॉर लूप बट यू इंस्टेड यूज दिस np डॉट सम फंक्शन, मे बी डॉट प्रोडक्ट और मे बी समथिंग एल्स। आपने कुछ भी करना आप numpy से कर लो, आपका बहुत काम तेज हो जाएगा एंड टाइम विल बी सेव्ड। तो ये तो सिर्फ 10 मिलियन वैल्यूज थी। लेट्स से ये 10⁻20 होता, 10⁻100 होता, तो वो आप आपस में मल्टीप्लाई होके ये 6500 वुड हैव बिकम टाइम इन मे बी आवर्स, मे बी 6000 आवर्स हो जाता, तो दैट विल बी इम्प्रैक्टिकल। तो अगर आपको वेक्टराइज वर्जन में करना है, numpy लगा लोगे तो बहुत टाइम बचता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द numpy, दिस इज द बेसिक ऑफ numpy जो हमने अभी तक डिस्कस किया है। नाउ आई विल कम टू pandas. सो pandas इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, pandas इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज numpy। numpy का तो चलो हमें पता है कि numpy ने बहुत हेल्प करी है, pandas भी numpy से ही बना है, बट pandas अपने आप में बहुत बड़ा एक यूनिट है। एंड इफ यू लुक इनटू दिस प्लेलिस्ट, तो ये जो 6.1 है, 6.2 है, टिल 6.7, मैंने 7 कोड बनाए थे pandas के, अलग अलग चीजें इसमें डिस्कस करी हुई हैं। तो pandas, introducing pandas conditional filtering, missing data, group by operations, combining data frames। अब data frame अपने आप में क्या होते हैं उसकी बात भी करेंगे हम। text methods, input output। so I hope आप ये अब कर लोगे जैसे जैसे हम कर रहे हैं इसको। so introducing the pandas, first हम इसको कवर करते हैं। अगर पीछे वाले में किसी को कुछ डाउट है, यू कैन आस्क, आई विल डिस्कस दैट। अभी तक वेक्टराइजेशन में कोई डाउट आया हो, टाइम डॉट टाइम के बारे में कुछ डाउट आया हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आई विल मूव अहेड। नाउ इंट्रोड्यूसिंग पांडास। इंट्रोड्यूसिंग पांडास में there are multiple things that I want to discuss, and initially first two things are series and data frames. Series and data frames discuss करते हैं, and in series I will be discussing about the basics of pandas series object and the series operations, what are the different operations that we can do. And then in the data frames I will be discussing about the basic data frame operations, columns, rows, सब कुछ मतलब। so these are the very basic things in pandas। अगर आपको ये सब आ गया समझ में, then you can easily start handling the data set। तो हम data set को भी import करके उसके जो हम प्री प्रोसेसिंग करना चाहते हैं वो सब भी कर पाएंगे। now now there are two things that need to be imported. Import numpy as np and pandas as pd. So these are the shortcuts that I will be using again and again in coding। pd dot np dot करके हम बहुत बार use करेंगे इनको। तो these are the shortcuts। and if you want to learn more about this panda series, what you can do is आप इस कमांड को रन कर लेना by deleting the hash। help pd dot series रन करोगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। and in pd dot series there are multiple things, data है, index है, data type है, name, copy, fast path। there are multiple things written in this
बहुत सारे इसमें वेरिएबल हैं and all of those details are written in this help. You can look into that later on. Now I will start discussing that how to how to work with this series. ठीक है. Now this my index equal to India, USA, Canada, and my data equal to 1947, this. So these are the two lists or arrays. क्या है ये? Can anyone tell? What are these two? Array है या list है? जल्दी बताओ. लिस्ट है सर। Okay. So now I am converting this list into series. ठीक है. pd.series नाम का एक फंक्शन है. Notice that s is capital. pd.series करूंगा मैं तो data equal to my data. अब इसमें बहुत सारे फंक्शन थे, मतलब बहुत सारे इसमें आर्गुमेंट थे, राइट. डाटा भी था, इंडेक्स भी था. तो हमने क्या किया, वी आर जस्ट सेइंग दैट माय डाटा इज इक्वल टू दिस डाटा. सो आई एम कन्वर्टिंग माय डाटा which was this into a series, and ये series बनते ही it will print like this. ठीक है. 0 1 2 1947 1776 1867, these are the three values in a series. Now type of my series. ठीक है. टाइप तो वही है भाई, पांडास की सीरीज है ये, तो pandas डॉट कोर डॉट सीरीज ऐसे करके पूरा उसका पाथ आ गया, पूरा उसका टाइप आ गया, सीरीज नाम की टाइप है. Now let's use two things, data equal to my data but index equal to my index. अब index में मैंने ये रखा था, तो ये साथ में इसने इसको 0 1 2 की बजाय इंडिया, यूएसए, कनाडा भी लिख दिया. तो माई सीरीज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज करने पे ये सब हो गया. बट यहाँ पे पीडी डॉट सीरीज का कमाल है ये, that all the 0 1 2 has been replaced by India, USA, Canada. ठीक है. Now if I want to print this my series 0, it will print the first element. My series India, again first element. जो हमारा डाटा है, डाटा ही रिटर्न होगा. तो डाटा में तो यही सब था. ठीक है. ऐसे करने पे डाटा रिटर्न हो रहा है. After this, now I am using dictionary. ठीक है. Rohit 45, Virat 18, and UV 12. I hope you know that this is a dictionary. We have discussed this in the data structures. PD dot series करोगे तो that dictionary can also be converted into this series. तो आपने नोटिस किया होगा कि जब हमने ऐसे किया था तब भी वो ऐसे करके प्रिंट कर रहा था. डिक्शनरी है तब भी उसने ऑटोमेटिकली उसको ऐसे फॉर्म में लिख लिया. अपने आप उसको पता चल गया कि कौन सा उसका की है, कौन सी उसकी वैल्यू है. ठीक है. तो PD dot series is a very powerful function. It will be used. There are multiple ways to use it. वो हम देख ही रहे हैं, बट इसके एडवांटेजेस बहुत हैं. जब आप डाटा सेट्स के साथ खेल लोगे, आपके सामने बहुत सारे अजीब अजीब से डाटा सेट्स आएंगे, then it will be very helpful for you to remember these concepts and do the work. Series operations. आप देखो ये. I will take 20 seconds break. I am giving you सर आप time. 6th टाइम का मतलब दोबारा बता देंगे. 6th line. कौन सा 6th लाइन का? हाँ ये जी. यस सर. अरे यहाँ पे मैंने माई सीरीज नाम का वेरिएबल लिया ना, बस उसका टाइप रिटर्न करवाया हमने. टाइप ऑफ दिस वेरिएबल, जैसे डाटा इन 64 है. तो सर ये कैसा टाइप है? pandas डॉट कोर डॉट सीरीज. सीरीज का डाटा टाइप है ये, और ऐसे ही प्रिंट होता है पांडास में. ठीक है. मतलब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता. दिस इज द डाटा टाइप. आप इसको शॉर्टकट में सीरीज बोल देते हो, बट द फुल वर्जन इज दिस. और इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनता. मैं ऐसा कुछ गंदे से क्वेश्चन भी नहीं डालूंगा कि मुझे इसका टाइप रिटर्न करके पूरा 4 वर्ड्स का लिख के दो. द कंसेप्ट इज सिंपल दैट इट इज ए सीरीज. ठीक है. तो पांडा सीरीज है ये, तो इसको लिखते ऐसे हैं, मतलब आउटपुट ऐसे आता है, तो इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, राइट. ऑटोमेटिक है. Now coming to this series operations. Performance of Mumbai Indians in IPL matches. Now I have written these random numbers. Match 1, match 2, scores of 4 players, and I am converting them into series. ठीक है. PD dot series मैंने सीरीज M1, सीरीज M2 दो सीरीज बना दिए. फर्स्ट सीरीज में ये आ गया, सेकंड सीरीज में ये आ गया. तो these are the runs scored by each player of Mumbai Indians. Now
if I print series M1 of Rohit, it will give me 80, right? And similarly M1 of 0 तब भी 80. तो मतलब there are multiple methods to get the same value. If I write the dot keys value, अगर मैं सीरीज M1 के साथ डॉट कीज लगाता हूँ तो वो सबके कीज देना शुरू कर देता है. इतना सबको पता है ये की है, ये वैल्यू है. बेस्ड ऑन दिस डिक्शनरी की वैल्यू तो हमें सबको पता ही है, राइट? तो बेस्ड ऑन दैट हमें कीज भी रिटर्न करवा के प्रिंट करवानी आनी चाहिए. नाउ इफ आई एम डूइंग दिस ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन ऑन सीरीज 1,2 इंटू 2, तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा. मतलब ये नहीं है कि वो 1 को 2 कर दिया, 2 को 4 कर दिया. यहाँ पे बिकॉज इट इज ए सीरीज, मतलब वो इंटू 2 कर रहा है, उसको ब्रॉडकास्ट कर रहा है. 1 2 डबल कॉपी बना दिया उसने. सिमिलरली अगर आप उसको करना चाहते हो, लेट्स से आपने उसको 2 4 प्रिंट करवाना है, देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एरे. जब तक वो एरे नहीं है, वो तब तक उसको ऐसे मल्टीप्लाई वैल्यू को नहीं करेगा, वैल्यू प्रिंटिंग नहीं करेगा. ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है. एंड आफ्टर दैट इफ आई डू दिस सीरीज M1 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, तो उससे ये सब प्रिंट हो रहा है. तो कुछ नहीं, बहुत आसान है. तो सीरीज M1 क्या थी हमारी, ये थी इंटू 2. ठीक है, उसने सबको इंटू 2 किया और डिवाइड बाई 10 कर दिया. कहाँ पे गया, ये रहा. तो उसने 80 को 160 किया, डिवाइड बाई 2 कर दिया. ठीक है, डिवाइड बाई 10 कर दिया, 16.0 आ गया. सिमिलरली 45 इंटू 2 90, 90 इंटू 2 180. तो ऐसे करके सारे नंबर आ गए. पर सीरीज M1 के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, इट इज स्टिल सेम. ठीक है, क्योंकि आपने इक्वल टू करके सेव नहीं किया था. नाउ इफ यू डू दिस, ये बताओ मेरे को क्या हो रहा है यहाँ पे हाईलाइटेड सेक्शन में. ये वैल्यू चेंज की है, तो भी पांड्या ने और बुमराह ने पोस्ट पे वो चेंज कर दी. चेंज नहीं किया हमने, हमने ऐड किया है, अपेंड किया है. ठीक है, हाँ तो मतलब ऐसा है. हाँ, मतलब चेंज तो वो होता कि अगर एग्जिस्टिंग 4 को कुछ चेंज किया होता, बस हमने अपेंड कर दिया एक एक नाम. ठीक है, नाउ इफ आई डू दिस सीरीज M1 प्लस सीरीज M2, क्या आउटपुट आएगा बताओ. अपडेटेड अपडेटेड तो ये होगी ना, अपडेटेड वाला सीरीज M1 ये है, अपडेटेड वाला सीरीज M2 ये है. तो आउटपुट क्या आएगा इफ आई डू सीरीज M1 प्लस सीरीज M2. हाँ जी, बताओ इसका आउटपुट. वैल्यूज ऐड हो जाएंगी सीरीज M1 और M2 की. रोहित का जैसे 180 आ गया, स्काई का 80 प्लस 68, पोलार्ड का 20 प्लस What about 90. what about Pandya and Bumrah? They are not in each other list. ऐसे ही डायरेक्ट वैल्यूज आ जाएंगी उनकी शायद. Not a number. Why? इस केस में क्या हो रहा है, बिकॉज द अदर पार्ट इज नॉट अवेलेबल, तो उसने वो नॉट ए नंबर ले लिया उसको. ठीक है, मतलब वो ओरिजिनल को भी उसने उठाया नहीं, मतलब कि वो पांड्या को भी ले गया जी, बुमराह को भी ले गया साथ में. तो 10 प्लस 0 नहीं किया, बिकॉज जब वो दूसरी लिस्ट में है ही नहीं, तो 10 प्लस 0 थोड़ी करेगा. तो अगर 0 करवाना है तो उसके लिए वे होता है कि आप ऐसे कर दो, दैट डू दिस थिंग सीरीज M1 डॉट एड सीरीज M2, और अगर कुछ मिसिंग है तो उसको फिल वैल्यू 0 कर दो. तो उस केस में वो 10 प्लस 0 कर देगा, 40 प्लस 0 कर देगा. ठीक है, तो यूजिंग दिस मेथड यू कैन गेट द समेशन जैसा आप चाहते थे. बट आप सिंपल प्लस लिख दोगे तो वो फिर नॉट ए नंबर दे देगा. ओके, मूविंग अहेड. सीरीज M1 का डाटा टाइप इज int 64, OP का float 64. बाय.
नाउ सीरीज M1 को अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें नंबर है 80, 68, 90, इसमें पॉइंट कुछ नहीं है ना। जब पॉइंट नहीं है तो वो इंट है, ठीक है। लेकिन जब आपने ऐड करा तो वो पॉइंट्स उसने साथ में लगा दिए, तो उस चक्कर में वो फ्लोट बन गया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज। नाउ series is complete. Now data frame. Data frame is the most important thing. Every data set that you will be handling in machine learning, it will be converted into data frames for implementing your machine learning models. Data frame is the most important data, I mean, type of structure in this pandas. Okay. Now, if I write this np.random seed 100, अब ऐसे करने से ना, अगर आप इनको तीन स्टेटमेंट को एज इट इज रन करोगे तो आपका आंसर भी यही आएगा। वाई? बिकॉज सीड 100 हमने लिख दिया यहाँ पे। सीड वाली स्टेटमेंट गायब कर दो तो ये नंबर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। 100 रखोगे तो एग्जैक्टली यही नंबर आएंगे। और इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज दिस हैज ऑलरेडी बीन हैंडल्ड, ठीक है। नाउ माई इंडेक्स, दीज 3 नेम्स, माई कॉलम्स, दीज 4 कॉलम्स। तो उनको आप डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करोगे तो पहले तो आपने सिर्फ माई डाटा को किया, तो माई डाटा को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करने पे आपका अपने आप ऐसे करके 0 1 2 3 और 0 1 2 आपका हर किसी का रो एंड कॉलम नंबर आ गया फॉर दिस एरे। बट नाउ इफ यू डू इट विद दिस थिंग, डाटा इक्वल टू माई डाटा, इंडेक्स इक्वल टू माई इंडेक्स, तो उसने ये भी फिल कर दिए नेम ऑफ द सिटीज। क्योंकि यहाँ पे हमने अभी हमने क्या किया है, सिर्फ कॉलम का किया ना, विदाउट कॉलम नेम, सिर्फ, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स किया, तो इंडेक्स का मतलब तो सिर्फ रो होता है, ये हमने पहले पढ़ा है। कॉलम के लिए क्या करेंगे, कॉलम्स इक्वल टू माई कॉलम्स। इंडेक्स का मतलब रो होता है, कॉलम का मतलब कॉलम होता है। तो अगर आपको पूरा करवाना था तो यू हैव टू राइट दिस इंडेक्स इक्वल टू माई इंडेक्स, कॉलम इक्वल टू माई कॉलम। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आई होप समझ आ गई हो। मूविंग अहेड नाउ, इसमें डाटा फ्रेम में एक डॉट इन्फो नाम का बड़ा खतरनाक और बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। ये हमें सब कुछ दे देता है निकाल के कि इस डाटा सेट में क्या कुछ है। टोटल 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। और उसमें से नॉन नल वैल्यूज 3 3 3, सब में 3 3 नॉन नल वैल्यू। मतलब क्या कि एक भी वैल्यू नल नहीं है उस कॉलम में, ठीक है। तो मतलब बहुत ईजी है समझना। एंड int 64 है। नाउ लेट्स से दैट यू वांट टू रीड द डाटा सेट। मैंने कल ही बोला था दैट वी विल बी डिस्कसिंग दिस iris डाटा सेट and the time has come that if you go to this link, I will post the link in the chat box. 1 second. Okay, posting this link in the chat box, done. So if you go to this link, and I hope that you people have made your own Kaggle accounts. मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था आपको। यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स आपको दिखेंगे, तो इसमें से डाटा वाले कॉलम पे ही रहना है, पहले से वैसे तो है। तो यहाँ नीचे जाओगे तो ये आपको दिखेगा iris.csv। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप इसको क्लिक करोगे, तो ये जनरली डाउनलोड नहीं होता ऐसे क्लिक करने से। इट इज़ जस्ट दैट आपके सामने राइट साइड पे बना आ जाएगा कि ये है क्या। बट यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, यू कैन क्लिक ऑन दिस डाउनलोड 15 KB। क्लिक करोगे, you will download the file, you can unzip that file, you will find csv file in inside that, ठीक है। तो iris.csv मिलेगा, तो मैं फटाफट से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको रन करके दिखाता हूँ। So I have got the data set downloaded. वैसे तो इसमें तो नहीं होगा गिटहब में, तो इट वुड हैव बीन इजी अगर मैं इसको कोलैब में ले जाऊं। लेट्स डू वन थिंग, आई विल ओपन दिस थिंग इन कोलैब। 1 second, give me 1 second. 6 1 introducing pandas, okay.
I'm sharing my screen again with the collab. So there are few things that we have already done. यहाँ पे सबसे पहले click to connect. एक बार connect कर लेंगे तो we will be assigned the resources on the backend from Google. Okay, so I have been assigned some RAM, some disk, few things have been given to me. Now I can run everything. Shift enter and everything I will go quickly. Now we were at this stage. ये सब हमारा हो चुका है. Now we are at this stage that we want to first see that what is this. अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रीड अंडरस्कोर करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं. रीड CSV फाइल, रीड एक्सेल फाइल, रीड फेदर, रीड FWF, HDF, HTML, JSON, SQL, बहुत कुछ आ गया मेरे पास. ठीक है, तो मुझे तो इसमें से सिर्फ CSV फाइल ही चाहिए अभी. तो ऐसे करके आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं इसमें. बट नाउ आई होप दैट यू हैव डाउनलोडेड द CSV फाइल. तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एक्सक्लेमेटरी PWD. कैन एनीवन टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ PWD? हाँ जी, एनीवन? फुल फॉर्म ऑफ PWD? इट इज प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. ठीक है, तो अगर मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखूंगा अपनी तो वो मेरी कंटेंट है. वाई? अगर आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे फाइल्स पे क्लिक करोगे, फाइल्स में जो मेरा करंट फोल्डर है ये कंटेंट का पार्ट है. ठीक है, तो मैं ऐसे पीछे वाला अभी बटन क्लिक करके नहीं दिखाऊंगा आपको. क्लिक करूंगा तो बहुत कुछ पीछे दिख जाएगा एंड कंटेंट भी कंफर्म हो जाएगा, बट थिंग्स विल बी मैसी देन. आप अपने एंड पे इसको क्लिक करके देखो, पीछे वाले पे जाके देखो तो आपको पता चल जाएगा बहुत कुछ है उसमें से. कंटेंट वाले फोल्डर के अंदर हम बैठे हैं. Now, if I do this ls means that within this content folder मेरे पास क्या कुछ है. अभी सिर्फ सैंपल डाटा है, बिकॉज ओनली सैंपल डाटा का फोल्डर है. सैंपल डाटा में और भी बहुत चीजें हैं, बट डायरेक्टली तो सिर्फ सैंपल डाटा दिख रहा है. Now I want to add my data set here. ठीक है, I want to add my data set and I want to bring it in this. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बैक एंड पे अनजिप कर रहा हूँ फाइल को. archive.zip में से archive में गया फोल्डर में, उसमें से iris.csv फाइल को उठाया और मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे मैं ले आया और इसके अंदर डाल दिया. नाउ यू कैन सी दैट iris.csv इज देयर, है ना. इफ आई रन दिस ls list command again, ls is list command, तो iris.csv यहाँ पे आ चुका है. नाउ इफ आई वांट टू रीड दिस फाइल तो यहाँ पे आई कैन डू इट बाय दिस कमांड pd.read.csv एंड डायरेक्टली बस उसको नाम देना है जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, एज इट इज वही नाम डाल दोगे. और वो करने के बाद साथ के साथ आप डेटा फ्रेम को प्रिंट भी करवा के देख सकते हो. ठीक है, आप उसको डेटा फ्रेम को प्रिंट करवाओगे, इट विल बी एग्जैक्टली सेम जो आपका बैक एंड पे एक्सेल शीट था. आप एक्सेल शीट आई होप बैक एंड पे खोल के देख रहे हो. यू विल बी आई मीन यू कैन कंफर्म दिस के आपका सब कुछ सिमिलर है. देर आर 150 रोज, देर आर 6 कॉलम्स. तो डेटा सेट आपका छोटा ही है, 150 रोज बहुत ज़्यादा तो नहीं होते. 6 कॉलम इज ऑल्सो वेरी फ्यू रोज, वेरी फ्यू कॉलम्स. सो नाउ आई वॉन्ट टू डू सम बेसिक ऑपरेशंस. ठीक है, तो बेसिक ऑपरेशंस में देख लेते हैं क्या कुछ है. सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू नो कि यार मेरे जो ये कॉलम्स हैं इनके नाम क्या हैं. ठीक है, मुझे सिर्फ ये नाम प्रिंट कराने हैं ऊपर के. तो वो कैसे होंगे प्रिंट? वो होंगे, आप अगर कर दोगे df.columns करके शिफ्ट एंटर मारोगे तो आपके सारे नाम आ जाएंगे. आईडी, सेपल एंड सेंटीमीटर, ये वो सारे मिला के आपके आगे. एंड डेटा टाइप इज ऑब्जेक्ट. ऑल द नेम्स, ऑल द थिंग्स ऑफ दिस नेम्स ऑफ कॉलम्स, द लिस्ट सारी मिला के ये ऑब्जेक्ट है. नाउ df.index क्या करेगा? कॉलम्स तो आ गया, इंडेक्स क्या करेगा बताओ जी, एनी आइडिया? 10 minutes left. I will try to complete this. बहुत कम चीजें रह गई हैं इसमें. पांडास का इंट्रोडक्शन आज हो जाएगा खत्म. जल्दी से बताओ दैट व्हाट इज df.index. इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करने के लिए.
df dot index is only telling me the range कि वो start 0 पे हो रहा है, stop 150 पे हो रहा है, step 1 है। 150 का मतलब है कि 150 एक्सक्लूसिव, ठीक है, तो 149 तक है, तो वो सिर्फ इंडेक्स के नंबर बता रहा है कि 0 से लेके भाई 149 तक जाना है, तो वो इसलिए वो स्टार्ट स्टॉप स्टेप ये सब बता रहा है, 3 चीजें, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट रिटर्न्स। नाउ इफ आई राइट दिस df dot head 10, ठीक है, इट विल रिटर्न मी द टॉप 10 रोज ऑफ द डेटा सेट, ठीक है। तो 1 to 10 आपके आईडी हैं, ये सारे आपके टॉप 10 रोज ने प्रिंट करा दिए। अब इसमें कोई ना कोई नल वैल्यू होती तो दिख जाती है और पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। बट इन केस मैं 10 नहीं लिखता, ठीक है, इन केस मैं सिर्फ df डॉट हेड करता हूँ, तो बाई डिफॉल्ट 5 आएगा, बाई डिफॉल्ट टॉप 5 रोज आएंगे, ठीक है। तो आपको 5 की बजाय 10 करने हैं तो आप कर सकते हो। उसके बाद टेल का भी सेम है, आप लास्ट के 5 रो देखना चाहते हो, 10 देखना चाहते हो, तो आप df डॉट टेल लगाओ, आपका काम हो जाएगा। df डॉट इन्फो विल गिव मी वही डिटेल सारी आ जाएगी कि कौन कौन से कॉलम है, उसमें कितने नॉन नल वैल्यूज हैं, काउंट क्या है, डेटा टाइप क्या है, ठीक है। मतलब नॉन नल काउंट वाला आ गया 150, नॉन नल 150, नॉन नल 150, नॉन नल, तो मतलब हर किसी में नॉन नल वैल्यूज ही हैं, किसी में भी नल वैल्यू नहीं है। कोई भी ऐसे नहीं है कि नॉट ए नंबर है, कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो प्रॉपर वैल्यूज हैं सब में। तो दिस इज हाउ द इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटा फ्रेम लुक्स लाइक। नाउ इफ यू राइट df डॉट डिस्क्राइब, ये क्या करेगा, ये मुझे मीन मीडियन मोड सब निकाल के दे देगा, ठीक है। मीन हो गया, मीडियन हो गया, मीडियन तो नहीं है, मीन मिन काउंट, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, मैक्स, सब कुछ निकाल के दे दिया। अब इस चीज का फायदा क्या है, लेट्स से आपका मीन वैल्यू 75 ना होकर मे बी 2 होता, ठीक है, एंड मैक्स वैल्यू इज 150 और मे बी 75% इज 112, तो मीन 2 है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया है ना। मीन का मतलब है कि मैक्सिमम का क्या है? सबका ही एवरेज, एवरेज 2 है, बट 75 परसेंटाइल मतलब कुछ ना कुछ भाई घपला है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि क्वार्टाइल अगर आप रेंज बनाते हो तो देर इज दिस सम डिस्क्रिपेंसी, बट इन दिस केस डिस्क्रिपेंसी नहीं है, ऑल द थिंग्स आर फाइन। मीन अगर इतना है, मैक्सिमम वैल्यू इतना है, तो ठीक से मतलब पता चल रहा है कि हाँ 50% के आसपास ही अपनी मीन वैल्यू आ रही है। तो 50% डेटा इज नियरली सेम एज मीन वैल्यू, तो इट इज ए सिंबल के हाँ डेटा सेट हमारा बैलेंस्ड है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। देखो अगर डेटा सेट बहुत बड़ा हो तो आप उस चीज को मतलब सपोज आपके ये 6 कॉलम ना हो के, 5 कॉलम ना हो के 500 कॉलम होते, फिर क्या करते आप, फिर आपको ये वाले जो हेडिंग्स हैं, काउंट, मीन, स्टैंड डेविएशन, ये आपके 7-8 चीजें हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छे से दिख जाती है अगर आप उसको ट्रांसपोज कर देते। लेट से आपके 500 कॉलम होते तो वो ऐसे करके दिख जाता। अभी तो यहाँ पे 5 ही हैं, बट 5 की बजाय 500 भी होते तो भी उसकी ब्रेड्थ नहीं इम्प्रूव होगी, ब्रेड्थ उतनी रहेगी, हेडिंग्स यही रहेंगे, ठीक है। तो इसका ये फायदा होता है ट्रांसपोज करने का। नाउ कॉलम्स इन डाटा फ्रेम, कॉलम्स इन डाटा फ्रेम का देख लेते हैं जी। df डॉट हेड करा, टॉप 5 आ गया। टाइप ऑफ डाटा फ्रेम, दिस पेटल लेंथ cm, इट इज ए सीरीज, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहे हो, डाटा फ्रेम के पेटल लेंथ cm की, इस वाले की, तो ये एक सीरीज है, एक सिंगल कॉलम मेरा सीरीज है, यहाँ से ये पता चल रहा है। सिमिलरली अगर मैं दो जनों को इकट्ठे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, डाटा सेट में से सिर्फ 2 कॉलम निकाल के रखने हैं, तो सिर्फ 2 कॉलम भी अलग से प्रिंट करवा सकते हो ऐसे करके। नाउ मूविंग हेड, इफ यू आर प्रिंटिंग द सम, आपने लेट से एक नया बना लिया कॉलम, प्रिंट पेटल सम cm, जबकि पेटल लेंथ है, पेटल विड्थ है, पर आप सम करके ऐसे सम करना चाह रहे हो, उसको सेव कर दो, उसको अपेंड कर दो। ये अपेंड करने का तरीका है जी। इफ यू आर डूइंग सम समेशन, यू आर सेविंग इट इन ए डाटा फ्रेम, तो ये वाली चीज अगर आपने अपेंड करनी है आपके ओरिजिनल डाटा सेट में, तो बस सिंपल आप उसका डाटा फ्रेम के साथ नेम डालो, उसको वैल्यू डालो, आपका यहाँ पे प्रिंट करवाओगे तो आपका हेड ये टॉप 5 रोज में पता चल रहा है कि हाँ जी ये प्रिंट सम सेंटीमीटर हैज बीन अपेंडेड, ये जो आखिरी वाला कॉलम है ये अपेंड हो चुका है इनिशियल 5 कॉलम्स के साथ, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने इसको ड्रॉप करना है तो ड्रॉप भी कर सकते हो, x इज इक्वल टू 1 इज फॉर कॉलम्स, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 करोगे तो आपका वो प्रिंट पेटल सम, एक सेकेंड यार, ये डॉट ड्रॉप पेटल सम
अगर मैं सिर्फ ये करता हूँ, x is not found, x इक्वल 1 दिया तो था। अच्छा, ये कह रहा है कि उड़ा ही दिया आपने, तो अगर मैं इसको रन करूंगा तभी वो आएगा ना, मैंने ऐड ही नहीं करा। अब हुआ है, अब ठीक है। अब देखो, मैंने एक्चुअली यहाँ पे ये रन नहीं किया था इसलिए एरर आ रहा था। रन करूंगा तभी तो ये ऐड होगा, और जब ऐड ही नहीं हुआ था तो डिलीट क्या करता, राइट। तो मैंने इसको ऐड करवाया, हेड देखा तो मेरे पास 6 कॉलम आ रहे हैं, 6 7 जितने भी हैं। और उसके बाद मैं उसको ड्रॉप करवा सकता हूँ विद एक्सेस। अगर एक्सेस नहीं दूंगा तो एरर आ जाएगा, उसको पता ही नहीं है रो वाइज या कॉलम वाइज है क्या है। आफ्टर दैट डाटा फ्रेम को आप रन करोगे, मतलब डाटा फ्रेम आप प्रिंट करवाओगे, तो आपके डाटा फ्रेम में वो अपेंड हो रखा है अभी भी। वाई, फॉर ए सिंपल रीजन, आपने यहाँ पे डी एफ इक्वल टू नहीं किया था। अगर आप डी एफ इक्वल टू नहीं करोगे तो आपका डाटा फ्रेम अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल है अब तक का। उसके बाद इफ़ यू आर डूइंग इट विद इक्वल टू, फिर वो डाटा फ्रेम को अपडेट कर देगा। नाउ वाई एक्स इज इक्वल टू 0 इज रोज एंड एक्स इक्वल टू 1। सिंपल है जी, जब आप इसको डी एफ डॉट शेप करते हो तो आपका सबसे पहले रोज की वैल्यू आती हैं, फिर आपकी कॉलम की वैल्यू आती हैं। तो याद रखना आसान हो गया। 0th वैल्यू ऑफ दिस इज 150, 1th वैल्यू इज 6, और पहले रो प्रिंट होते हैं फिर कॉलम प्रिंट होते हैं, इसलिए 0 मेरा रो है, 1 मेरा कॉलम है। याद रखना आसान है। नाउ फाइनली रोज इन डाटा फ्रेम, कॉलम्स का ऑपरेशन हो चुका। नाउ रोज का देख लेते हैं, देन आई विल रैप अप द सेशन। रोज इन डाटा फ्रेम df डॉट इंडेक्स, ठीक है। सिर्फ इतना करोगे तो सेम वही 0 से लेके 150 तक आ जाएगा। उसके बाद सेट इंडेक्स आईडी, नाउ कॉलम आईडी इज नॉट, नाउ कॉलम आईडी इज नाउ इंडेक्स आईडी, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका क्या मतलब है। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये खिसक गया, थोड़ा नीचे आ गया है, राइट। मतलब आईडी पहले ऊपर था, उसकी सीध में था यहाँ पे समवेयर हेयर, बट नाउ ये थोड़ा अलग से है। नाउ माई कॉलम आई डी हैज़ बिकम इंडेक्स आई डी, ठीक है। तो ये अलग से हो गया, तो ये इंडेक्स बन गया। रीसेट इंडेक्स करोगे तो वो वापस ऊपर चला जाएगा। समटाइम्स ये चीज़ें हेल्प करती हैं, ठीक है। एंड मतलब ये आएगा प्रैक्टिकल में, तो इसलिए बता दिया। नाउ अगेन, अगर आपने इसको करना ही है, नाउ ये करने का फ़ायदा क्या हुआ, मैं बार बार ये करके दिखा रहा हूँ आपको, पर इसका फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा ये हुआ, इनिशियली आपकी काउंटिंग थी 0 से लेके 149 तक, ठीक है। लेकिन आपको काम करना है इसके आईडी के हिसाब से 1 से लेके 150 तक। तो फ़ायदा ये हुआ कि आपका जब लेटेस्ट वाला अगर आप देखोगे तो इट इज़ 1 से लेके 150 तक, ठीक है। ईजी हो गया। नाउ आई लॉक, grab a location, grab a row based on grab a row based on integer location और labeled index location। तो इंडेक्स लोकेशन हो गया आई लॉग 0। तो आपने क्या किया, जो आपका फर्स्ट था आपने उसके सारे वैल्यू रिटर्न करा दिए, 5.1 3.5 1.4, तो वो सब आपके आ गए हैं। सिर्फ फर्स्ट वाला, सिर्फ LOC 1 कर रहे हो तो वो इस वाले 1 को पकड़ रहा है आईडी को, तब भी वो सेम ही वैल्यू देगा। तो अगर आप इंडेक्स के हिसाब से जा रहे हो तो वो 0 से काउंटिंग शुरू करेगा। सिर्फ LOC लिख रहे हो तो वो ये वाले एग्जैक्ट आईडी की वैल्यू मैच करेगा, तब भी सेम वैल्यू ही प्रिंट हो रहे हैं। दोनों केस में देखो एग्जैक्ट सेम वैल्यूज प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। रीजन इज सिंपल, समझा दिया। नाउ इफ यू वांट टू ग्रैब मल्टीपल रोज, वही सब सेम दोबारा शुरू हो गया, आई लॉग 0 कॉलन 3 1 2 3, मतलब ये सब आपको आता है कि आपने कैसे इन सबको हैंडल करना है, ठीक है। नाउ ड्रॉपिंग द फर्स्ट रो, आप ड्रॉप कर दो इस 1 को, x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब रो, तो आपका आईडी 2 से शुरू हो रहा है, 1 वाला उड़ चुका है। एंड सिमिलरली आप आई लॉक 1 करोगे तो आप आई लॉक से इंडेक्स वाला 1 वाला उड़ा दोगे। नहीं, सिर्फ अभी तो प्रिंट करवा रहे उड़ा नहीं रहे, बल्कि डी एफ डॉट आई लॉक 1 कॉलन 1 को 1 से लेके एन तक जाना है, तो 1 मेरा यही था,
है ना, क्योंकि अगर आईडी मेरा 1 था तो वो इंडेक्स लोकेशन 0 था, बट इंडेक्स लोकेशन 1 तो मेरा 2 से शुरू हो रहा है, तो इसलिए 2 से लेके एंड तक सारे प्रिंट हो जाएंगे। 1 रो, उसमें से एक रो निकाली, 1 रो में ये सब डाल दिया, उसके बाद उसमें अपेंड करवाया, मतलब डेटा फ्रेम में अपेंड करवा दिया, तो मेरा जो फर्स्ट रो था वो मेरा एंड में जाके अपेंड हो जाएगा। यू विल सी द फर्स्ट रो इज अगेन अपेंडेड एट द एंड, और टोटल नंबर ऑफ रोज आर 151 नाउ। वाई ये मैंने करा क्यों है, क्योंकि मुझे एक और कमांड करानी थी, डिलीट द डुप्लीकेट रोज फॉर यूजिंग दिस ड्रॉप डुप्लीकेट्स। आप ऐसा करोगे तो आपके पास जो 1 2 बार आ रहा था वो गायब हो जाएगा दोबारा से। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, यही सब था, बेसिक्स हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क राइट नाउ, अदरवाइज आई विल क्लोज द सेशन। सर यस। सर सीरीज और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस है? सीरीज और डिक्शनरी में, डिक्शनरी तो पेयर होते हैं ना, मतलब की वैल्यू पेयर होता है डिक्शनरी में तो, और सीरीज ये होता है कि आपका जो ये डेटा फ्रेम है उसका एक कॉलम हम सीरीज कहते हैं उसको। सर उसके साथ भी तो कोई वैल्यू अटैच होगी। वैल्यू तो है, बस उसमें पेयर है, इसमें नहीं है, है ना। एनीथिंग एल्स? ओके,